and a very good morning to all of you, and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. As we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 10th October, that is Tuesday, and we are here with the Hindu analysis of Tuesday. So, am I audible? मेरी आवाज आ रही है? So, these are the two important articles: Assembly election, 5 key states in November. The next is Israel imposes total siege on Gaza, death count rises and all. So first of all, let's discuss about it. Yesterday it was in the news and all that the election commission, the chief election commissioner, was doing a press conference announcing about the elections in the 5 key states, and these are the 5 states. So Chhattisgarh, Mizoram, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. So these 5 states are going for elections. Okay. Now, so if you see it, what are the election dates? So for Chhattisgarh, state of Chhattisgarh, so the election will be happening in 2 phases. ठीक है, देखो 2 फेज में होगा ये, 2 phases. That is on 7th November and 17th November. Okay, and the result will be announced on 28th October. Okay. Similarly, as far as Mizoram is concerned, 7th November, so the election date, and 20th October is actually the this is the last date for nomination, not the result. Last date to file nomination if you want to fight election. Okay. So this 20th October last date for Mizoram, also 20th October. Now Madhya Pradesh mein election will be on 17th November. The voting will happen in the entire state, and 30th October is the last date for filing nominations. Okay. Similarly, Rajasthan 23rd November, 6th November is the last date for filing nomination. Telangana is 30th November, the election will be happening, and 10th November is the last date for nomination. Okay. Now let's start. आप देख सकते हो. So the chief, who is the chief election commissioner of India, by the way? Who is the chief election commissioner of India? Please tell me in the live chat. Okay. So assembly elections in 5 crucial states, okay, would be held between 7th and 30th November and all. So these are the things that was in the news. Okay. तो ये सब मैंने बता ही दिया. So just keep on following those news and all regarding it. Now जैसे ही election announce होता है, model code of conduct is imposed. Model code of conduct. Okay. Yes, the chief election commissioner of India is Mr. Rajiv Kumar Good. Okay, and go and read something about model code of conduct. The moment it is announced, the election is announced by the election commission, model code of conduct is imposed, and there are some now restrictions, sort of restrictions or regulations on the ruling party and all in these states. I hope you are aware of that. So go and read something about model code of conduct as well. Okay. Yes. अच्छा, एक कुछ चीज और जानना चाहिए, जैसे ईवीएम के बारे में आप जानते होगे. So ईवीएम से रिलेटेड एक चीज होता है वीवीपैट. Go and read what is these things, वीवीपैट, ईवीएम and all. Okay. Okay. The next one is Israel imposed total siege on Gaza. I hope you are aware. So these things were in the news and all. Sir, Mossad is military group. No. Mossad is actually the external intelligence agency. Intelligence agency of Israel. Okay. And there is another called as Shin Bet. This is internal agency of internal intelligence agency of Israel. Okay. So just have an idea. Okay. Yes. So this was in the news and all. Tel Aviv, Jerusalem, ये सब news में था. So go and find out what is the capital of Israel, currency of Israel. देखो क्या क्या पूछा सकता है. Capital of Israel. Okay. So capital of Palestine and Israel find out. Then currency find out of both the nations. किसकी currency क्या है दोनों की. Okay. Then find out what कि history तो मैंने बता दिया कि 1967 war, 1973 war. ठीक है. Oslo Accord ये सब पढ़िएगा. Go and read these things. Okay. Then of course they can ask some history that Israel का के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके पूछ सकते हैं. The prime minister, who is the prime minister currently? He is from which political party? Okay, so these are the things they can ask it. हाँ, बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखा भी. पैलेस्टीन, रामल्ला, तेल अवीव. जेरूसलम को अब वर्ल्ड में तो रिकॉग्नाइज जेरूसलम को किया जाता है, तो हो सकता है ऑप्शन में अगर कैपिटल दिखे तो शायद जेरूसलम उसको माने. Parliament is Knesset. Yes, very good. So these are the things. So Prime Minister of Israel belongs to which political party? Okay, so and what about Palestine? He will so it's in actually West Bank and Gaza. Who is ruling Gaza? Who is ruling West Bank? ये सब पूछा जा सकता है. ठीक है.
So just have an idea. मैंने बताया this is West Bank, this one region is called as Gaza, okay, and the rest is this. मैंने कल आपको जो ऐप सेशन होता है मैंने बताया था नेगेव डेजर्ट फाइंड आउट करने के लिए. देखो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, साउथ पोर्शन ऑफ इजराइल इज एक्चुअली यू विल फाइंड नेगेव डेजर्ट. फिर मैंने और भी बहुत सारी चीज बोली थी फाइंड आउट करने के लिए. आइलेट पोर्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला था. अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा फाइंड आउट करने के लिए बोला था. सिनाई पेनिनसुला फाइंड आउट करने के लिए बोला था. चीज़ फाइंड आउट किया आप लोगों ने. सो गो एंड फाइंड आउट दीज प्लेसेस. ठीक है, तेल अवीव तो पता होगा, हाइफा पोर्ट इज देयर यहाँ पे. ठीक है, सो गो एंड फाइंड आउट दिस. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन ऑफ हमास दैट केम एज सरप्राइज अटैक ऑन इजराइल. योर ऑप्शंस आर ऑपरेशन अल-अक्सा स्टॉर्म, ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग, ऑपरेशन शिन बेट, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. इतना डीप पूछा जाएगा? हाँ, पूछा जा सकता है, बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो किसी टॉपिक के वो डीप में गए हुए हैं. यस, सो दे गो इन द डीप, दे हैव अ हैबिट ऑफ गोइंग इन डीप. उस ऑपरेशन का नाम क्या था जो विच हैपेंड रिसेंटली? यस, वेरी गुड, काफी सारे लोगों ने आंसर किया. यस, गौरी सेठी, सानिया अंसारी, प्रिया चवन, यू आर राइट. हाँ, नंदना, यस. ऑपरेशन अल-अक्सा स्टॉर्म वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन led by Hamas. Now, what is the operation by Israel that came as a response to Hamas attack? Your options are Operation Al-Aqsa Storm, Operation Black Flag, Operation Shin Bet, Operation Iron Swords. जो काउंटर ऑफेंसिव था उसमें उसका ये जो काउंटर ऑपरेशन था बाय इजराइल, उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? Yes, very good, Nandana. Gauri Sethi. Yes. Operation Iron Sword is the name given by it. So आप ये पढ़ लेना. देखो मैंने आपको बताया भी था, ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड भी कहते हैं या ऑपरेशन अल-अक्सा स्टॉर्म कहते हैं. सो द नेम ऑफ द ऑपरेशन गिवन बाय हमास, एंड टू काउंटर इट ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स इज द नेम गिवन. This is also sometimes called as third intifada. Observers have described it as third intifada. मैंने आपको इंतिफादा टर्म भी बताया था, that go and read something about intifada and all. And others have referred to it as Sukkot war. Okay, so इसको कुछ लोगों ने Sukkot war भी कहा है, या Israel's 9/11 movement या moment, sorry, Israel's 9/11 movement या Sukkot war भी some people have defined it. So ये सब terms, terminologies पता होना चाहिए. ठीक है, okay. The next one is who among the following has won Nobel Prize in Economics? Your options are Claudia Goldin, John Foss, Nargis Mohammadi, Operation Iron Swords. ये तो होगा नहीं, ये पता नहीं कैसे आ गया. इसको नन ऑफ द अबव कर देना चाहिए. ठीक है, यस. देखो ये तीनों एक्चुअली नोबेल प्राइज विनर है इस साल के. ओके, देखो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन्होंने जीता है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन्होंने जीता है, एंड नोबेल प्राइज इन पीस इन्होंने जीता है. ठीक है, ये तो होगा नहीं, तो सेंस भी नहीं बन रहा है. ठीक है, so just have an idea about it, है ना. So Claudia Goldin wins 2023 Nobel Prize in Economics. अच्छा, Nobel Prize in Economics is also known as what? एक और अवार्ड उसको कहते हैं डैश प्राइज कहते हैं इसको. उस प्राइज का नाम क्या है? I have taught this in paid classes. So Nobel Prize in Economics is also known as something else. ठीक है, और वो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था. It was introduced in 1968-69, है ना, 68-69 के आसपास. So she has got this award for what? As advanced understanding of gender gap in labor market. तो क्यों रिसर्च क्या है? जेंडर गैप इन लेबर मार्केट, ये मेन रिसर्च है. मतलब मेल और फीमेल का गैप, उसी की बात करें लेबर मार्केट में. सो शी हैज डन रिसर्च ऑन इट एंड शी हैज गॉट अवार्ड फॉर इट. Okay, so just have an idea about it. John Foss has got Nobel Prize in literature, है ना. सर इजराइल गाजा की वजह से आईएमएफ पर असर पड़े. यस, द फ्यूचर विल बी कमिंग टू दैट. आपकी बात सही है, विल बी कमिंग टू दैट. जब हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे विल टॉक अबाउट दैट. ठीक है, ओके. सो जॉन फॉस इज द विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज इनोवेटिव प्लेस एंड प्रोज व्हिच गिव वॉइस टू द अनसेबल. ठीक है, फिर सिमिलरली नोबेल प्राइज इन पीस वाज गिवन टू नरगिस मोहम्मदी for her fights against oppression of women in Iran. That is what the Nobel Prize authority has said. ठीक है, okay. Now let's move on to the next one. 10th October is Human Rights Day, World Mental Health Day, World Population Day, World AIDS Day. Your time starts now. हाँ, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स को सेवरेजेस रिक्सबैंक प्राइज भी कहते हैं. किसी ने लिखा है अभी? हाँ, गुड. हाँ,
बिकॉज मैंने पेड क्लासेस बताया है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स का एक स्पेशल नेम है एंड दैट्स कॉल्ड एज सेवेरेजेस रिक्सबैंक अवार्ड। हाँ, ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को है, ठीक है, ये पूछा था एलेट में लास्ट ईयर। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आज का दिन है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑन 11 जुलाई एंड वर्ल्ड एड्स डे इज ऑन 1 दिसंबर, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज द राइट आंसर। सो इस पर एक एडिटोरियल है आज, सो दैट इज व्हाई आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट, ठीक है। Okay, before that, this is an all India open mock from 20th October to 29th October. 20 से लेकर 29 अक्टूबर तक we'll be having an open mock CLAT, ठीक है, for CLAT. So please attempt it. Everyone should try to attempt it. कोई भी छोड़े नहीं इसको, ठीक है, ऑनलाइन मोड में है ना. So just download the app, go to CLAT section and you can attempt there, ठीक है. And this is the 2024 UGC test series जो है, जो लोग भी attempt कर रहे हैं, please those whosoever has bought this, please attempt it all, ठीक है, कोई भी छोड़ना नहीं है, एक भी नहीं छोड़ना है. और जो वीडियो एनालिसिस भी प्रोवाइड उसको भी आपको देखना है. बहुत कम बच्चे जो है मॉक टेस्ट देते हैं और वीडियो एनालिसिस देखते हैं. कम से कम अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम 1.5x या 2x स्पीड पर ही कुछ करके देख लो, बट एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए बिकॉज उससे भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है. सो वी टीच इट देयर एज वेल टू कवर दोस थिंग्स. फिर नेक्स्ट ईयर दोज हु आर अटेम्प्टिंग फॉर 2025 नेक्स्ट ईयर के लिए वी आर हैविंग अ कोर्स एंड वी आर प्रोवाइडिंग अ स्कॉलरशिप अप टू 90%. 15 अक्टूबर को 11 AM इन द मॉर्निंग विल बी हैविंग अ टेस्ट. रजिस्टर इट, कुछ करना नहीं, ऐप पर जाना है, क्लैट सेक्शन में जाना है, बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड करो, क्लैट सेक्शन में जाओ एंड यू विल गेट दिस, ठीक है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट एडिटोरियल. ये देखो, ये मेंटल हेल्थ पर है, ये विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट. द साइलेंस अराउंड द स्टेट सीजर ऑफ इंडियाज प्रेस. तो एक्चुअली ही इज एक्चुअली क्रिटिकल ऑफ the recent arrest of there have been some raids and all regarding the news click and all, and some arrests regarding it. So he is critical of that and all. That is what he is writing. इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो इस आर्टिकल में है. एडीएम जबलपुर केस, ये बहुत फेमस केस है, शायद आप लोगों को पता होगा. जस्टिस एच.आर. खन्ना he is talking about the courageous dissent and all. This judgment was overturned in पुट्टास्वामी केस and all. That is what he is talking about. तो ये बहुत फेमस केस है, इसको हैबियस कॉर्पस केस भी कहते हैं, habeas corpus case. So the main question was whether habeas corpus can be suspended during emergency. Habeas corpus जानते हो नहीं, सब पढ़ाया हुआ है ना. During habeas corpus can be suspended during emergency or not, ठीक है, यही मेन क्वेश्चन था. ADM, ये बहुत फेमस केस है एक्चुअली. So the judgment came was 4:1, but the one judge said कि no, habeas corpus will still be alive even during emergency, but 4 judges said yes, it can be suspended. So the one judge who actually was opposed it is Justice H.R. Khanna. He is very famous. Habeas corpus case नहीं जानते हो? Habeas corpus, to have a body of, habeas corpus का मतलब होता है this is a writ petition. writ पढ़ाया क्या होगा? आर्टिकल 32 लीगल फैकल्टीज ने पढ़ाया होगा, है ना. ओके, हाँ. सो इफ समवन इज डिटेन्ड देन ही और शी कैन गो, अगर इलीगल डिटेंशन है या कुछ इस तरह से रिलेटेड चीज है, सो ही और शी, हिज और हर रिलेटिव कैन फाइल हाइबस कॉर्पस रिट पिटीशन इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल, है ना. ये सब तो पता होगा, बेसिक चीजें, टू हैव द बॉडी ऑफ एंड ऑल. तो ये क्वेश्चन ये था कि क्या इसको सस्पेंड किया जा सकता है, कैन इट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी. सो बेसिकली ओनली वन जज सेड कि यस, इट कैन बी सस्पेंडेड, बट अदर 4 एक्चुअली फेवर्ड इट. और इसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया है हिस्ट्री में. एंड लेटर ऑन दिस वाज ओवरटर्न्ड इन केस पुट्टास्वामी केस, वही वाला केस है, राइट टू प्राइवेसी वाला केस. इन दिस केस एक्चुअली एडम जबलपुर केस वाज ओवरटर्न्ड इट. सो ये 5 जजेस थे, उसमें से एक्चुअली ये फेमस इसलिए हुआ था बिकॉज जस्टिस हंसराज खन्ना वाज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस, वाज सपोज्ड टू बी द नेक्स्ट सीजीआई एज फार एज सीनियोरिटी वाज कंसर्न्ड. सीनियोरिटी के हिसाब से इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगला बनना था, ठीक है. लेकिन बिकॉज ऑफ he passing a dissenting judgment, the Indira Gandhi government actually I think made image Baig, I guess. इनमें से इन दोनों में किसी को बना दिया था, A.N. Ray को या A.N. Ray को I think was made actually the Chief Justice of India. So he had to actually cost his position of CJI because of this judgment. ये काफी फेमस हुआ था और ये इसलिए भी फेमस है, his nephew actually, देखो जस्टिस हंसराज खन्ना, so he is very famous, ठीक है. So इनके nephew हैं, his nephew is the current judge of Supreme Court and he is going to be the next Chief Justice of India. आपको पता है. So Justice Hanraj Khanna's nephew is Justice Sanjeev Khanna. He is the current judge of Supreme Court.
and he will be the next Chief Justice of India once Justice D.Y. Chandrachud will retire. Okay, so you should be knowing it, है ना? So just have an idea. और अभी एक हियरिंग चल रहा था ये मनीष सिसोदिया से रिलेटेड, आपने देखा होगा. So he is the judge. Justice संजीव खन्ना is the judge. अच्छा, मैं जज का नाम वगैरह इसलिए बता रहा हूँ, द रीजन बीइंग इसलिए कि एग्जाम में भी सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया था. आपने देखा था सैंपल पेपर 3. So they have asked the name of a judge in one question. ठीक है, आपने देखा है. सिमिलरली इन जामिया एग्जाम जो इस साल हुआ था उसमें भी जज का नाम पूछा था, तो दे आर आस्किंग द नेम ऑफ जजेस ऑल्सो. सो दैट इज वाई आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दिस कि हो सकता है शायद वो जज का नाम दे दें. ठीक है, और ये फेमस हैं लोग तो शायद दे सकते हैं. ठीक है. ओके, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? ऑथर ने इसके बारे में बात किया है. सो योर ऑप्शंस आर 161, 152, 154, 180. बताइए तो. What is India's rank in World Press Freedom Index? सबको लाइक बटन प्रेस कर दो. Everyone, guys, we are seeing only 8 likes. So everyone, please press the like button. Yes, the right answer is Article 161 is the right answer to this question. तो वही उसको बता भी रहे हैं कि 161 India's rank as far as World Press Freedom Index is concerned. Okay. Then again, he is quoting a judgment of Supreme Court. Which of the following judgment of Supreme Court deals with guidelines for arrest? Your options are विशाखा guidelines, D.K. Basu guidelines, ATM जबलपुर case, none of the above. ये तो आसान है. हाँ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालती है. गुड. रैंक 1 इज नॉर्वे. गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट, ये तो आसान होगा. देखो एटीएम जबलपुर केस तो अभी मैंने बताया हाइपस कॉर्पस से रिलेटेड है, तो ये तो होगा नहीं. नन ऑफ द की भी चांस कम ही होता है. So yes, the right answer is D.K. Basu guidelines. So B is the right answer. He's quoting it, है ना? So तो वही बता रहे हैं कि there should be similar to D.K. Basu guideline. There should be some case which talks about what should be the guidelines regarding seizure of mobiles and laptops. कि क्या guideline होना चाहिए अगर लैपटॉप या मोबाइल फोन सीज किया जाए, नॉल, है ना? डाटा सर्च एंड ऑल. So that is what he is talking about. Yes, B is the right answer. हाँ, विशाखा गाइडलाइंस जो है वो उससे रिलेटेड है, मतलब वुमेन से रिलेटेड है ना. ये तो मैंने बताया भी है ना, पॉश एक्ट एंड ऑल, उसी की बात तो बना था. ओके, सो बी इज द राइट आंसर हियर. ओके, देखो एक और, चूंकि ये सब न्यूज वगैरह में रहता है, डाटा सीजर एंड ऑल, एक वीडियो बड़ा अच्छा है. सो जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च इट, आर व्हाट्सएप चैट एडमिसिबल इन एविडेंस. दिस इज अ वीडियो बाय निवेदिता मैम. यू कैन वॉच इट. 9 मिनट का वीडियो है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड वॉच इट. दिस विल टेल यू द बेसिक आइडिया अबाउट इट. ठीक है, इसको देख लेना. Okay, let's move on to the next one. Original sin editorial है, Israeli occupation of Palestine territory must end for lasting peace and all. So there have been, yes, जैसे ये वाला वो ये बता रहे हैं कि an unprecedented attack by Hamas and all, killing 700 people and all these things we have discussed. The tensions have been flaring in the West Bank for months and all. तो मैंने बताया भी था, this region, here is India, this is Israel, so this is West Bank, this is Gaza. तो एक्चुअली क्या है कि देयर हैव बीन, वही बता रहे हैं, टेंशंस हैव बीन फ्लेयरिंग. सो इसी साल, अर्लियर इवन बिफोर दिस अटैक, 200 पैलेस्टीनियंस हैव डाइड इन वायलेंस एंड 30 इजरायलीज वेयर किल्ड दिस ईयर एंड ऑल. तो उससे पहले भी वायलेंस हो रहा था वेस्ट बैंक में, इस रीजन, वेस्ट बैंक यानी ये वाला रीजन. सो ये दोनों मिला के पैलेस्टीन कहते हैं. ये दिस इज वेस्ट बैंक, दिस इज गाजा. ओके, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. ओके, सो बेंजामिन नेतन्याहू गवर्नमेंट लार्जली इग्नोर द वायलेंस एंड ऑल. सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. स्टेबल स्टेबिलिटी, ये सब बात हो रहा है. 1973 यौम किपुर वॉर के बारे में मैंने बताया था, गो एंड रीड इट, है ना. सो इसके रिजल्ट में ऑयल प्राइस शॉक हुआ था, ऑयल प्राइस शॉक. फिर उसके बाद 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था, है ना. कैंप डेविड अकॉर्ड बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल एंड ऑल, राइट. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. ठीक है, द स्टेटस क्वो हैज ओनली टर्न पैलेस्टीनियंस मोर रेडिकल एंड हमास इवन स्ट्रॉन्गर एंड ऑल. सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. कोई बच्चा पूछा था कि सर इससे इस पर असर पड़ेगा. यस, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलो या वेस्ट एशिया कॉरिडोर जिसको कहते हैं, है ना. ऑफ कोर्स लगता तो है कि असर पड़ेगा. देखो एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज recently in G20 summit we have seen the West Asia corridor of proposal of India Middle East economic corridor, East Europe. Okay, so escalation of Israel Hamas war could hit corridor plans. देखो इस तरह के लाइव में आर्टिकल भी आया था. देखो प्लान क्या था कि जैसे जनरली शिप ऐसे जाती है ना,
एक तो ऐसे जाती है शेप यूरोप. सो दूसरा प्लान ये था कि वी कैन हैव लाइक दिस. सो विल गो यूएई से ट्रेन से हाइफा पोर्ट और फिर यहाँ से ऐसे. ठीक है. तो अब ये है बात ये है कि दिस रीजन हैज बीन अफेक्टेड. ओके. सो वी हैव टू सी कि क्या फिर ये प्लान इंप्लीमेंट हो पाएगा एंड ऑल. सो वी हैव टू वेट. माइट गेट अफेक्टेड एंड ऑल. सो ये चीज है. कुछ पूछ भी रहा था ना कि सर. हाँ मैंने पूछा था. हाँ द फ्यूचर यस यू हैड आस्क्ड इट. सो यस अगर चीजें सुधरी नहीं, इफ द थिंग्स हैव इन फ्यूचर नॉट गेट इम्प्रूव्ड एंड ऑल, देन ऑफ कोर्स इट माइट गेट अफेक्टेड. सो लेट्स वेट, देन वी विल सी. आप समझ गए ये वाला रीजन से है ना, ऐसे ऐसे जाएगा और जो नॉर्मली है वो ऐसे जाते. ओके ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. मेंटल हेल्थ एंड फ्लाउंडरिंग इनफॉर्मल वर्कर. जैसे हम लोगों ने बताया भी, पहले ही क्वेश्चन का आंसर बताओ. व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे? मेंटल हेल्थ मोस्ट इग्नोर्ड वंस, मेंटल हेल्थ अ कर्स, मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, नन ऑफ द अबव. बताइए तो. थीम्स वगैरह पूछा था. ठीक है. 2021 में देवास थीम्स. सिर्फ एक बच्चे ने आंसर किया. यस. हाँ गौरी सेठी, सौम्या शर्मा, नंदना, यश गुप्ता. मेंटल हेल्थ इज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट. सो देखो ये सब चीजें काफी न्यूज में रहती है, ये सब पता होना चाहिए. देखो एक्चुअली द मेन रीजन इज, एंड दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग, दैट व्हाई एवरी 40 seconds इन द एंटायर वर्ल्ड दिस हैपेंस. ओके नाउ तो इसमें एक चीज ये है, मेंटल हेल्थ एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट. देखो एक चीज विच हैज बीन हाईलाइटेड अ लॉट इज मेंटल हेल्थ एज अ टैबू. So this has been also one of the issue. होता क्या है सर? लेबनान हैज अटैक्ड इजराइल. नहीं, लेबनान ने तो नहीं किया, हिजबुल्ला हैज अटैक्ड. देखो एक्चुअली जो एक देखो मैं बता देता हूँ. अभी हम लोग का टॉपर्स बैच चलेगा है ना, उसमें मैंने सोचा है कि इसको पूरा डिस्कस करने के लिए. ठीक है. सो देयर आई विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जितने भी ज्योग्राफिकल फैक्ट्स है मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सारे मैं डिस्कस करा दूंगा उस रीजन में का. ठीक है. सो इन दैट क्लास. ओके यस. नाउ सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस है ना, मेंटल हेल्थ एज अ टैबू. ओके नाउ देखो उसका क्या है. इट मीन्स दैट फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज सम एनी अदर डिजीज, तो अगर किसी कोई और डिजीज होता है, सो जनरली ए पर्सन गो टू द डॉक्टर. खांसी हो गया, जुकाम हो गया, फीवर हो गया, एनी अदर थिंग. बट व्हेन देयर इज अ मेंटल हेल्थ इशू, when there is a mental health issue with anyone, he or she does not go to the doctor. Okay, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है या जाती है. उसका रीजन, फर्स्ट रीजन इज इट्स अ टैबू. सो पहली बात तो समझना ही मुश्किल होता है. दूसरी बात कि इवन समटाइम्स द पेरेंट्स विल नॉट अंडरस्टैंड और द सोसाइटी डज नॉट अंडरस्टैंड, एंड मेनी टाइम्स द पर्सन बिलीव्स दैट देयर इज नो नीड फॉर डॉक्टर, कि इसकी जरूरत ही नहीं है, कि ऐसा कुछ होता ही नहीं. मेनी पीपल डू नॉट बिलीव इन दिस डिजीज. दे बिलीव दैट देयर इज नथिंग लाइक दैट. And this is the main reason कि जब आपने उसको टैबू बना दिया, so that's the main problem and all. हाँ. A segment often overlooked when it is concerns mental health is the informal worker and all. अभी खासकर mental health in informal worker की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो फॉर्मल वर्कर में जो होता है, if there is formal worker, in that case उसमें एटलीस्ट ये होता है कि उनकी जॉब्स बेटर होती है, सैलरीज होती है, पीएफ वगैरह मिलता है, एटलीस्ट बेटर. बट इन केस ऑफ इनफॉर्मल वर्कर एक्चुअली थिंग्स आर नॉट दैट मच गुड है ना. आपको पता है तो ऑफ कोर्स इनकी जॉब भी इतना फिक्स नहीं होती है, एंड ऑल दीस थिंग्स आर देयर. हाँ ओके ठीक है. सो दीज आर थिंग्स. कुछ बच्चा पूछा सर टैबू क्या होता है? टैबू मतलब जो समाज में जिसको अच्छा नहीं समझा जाए, थिंग विच इज कंसिडर्ड एज नॉट वेरी गुड इन सोसाइटी, यानी नॉट एक्सेप्टेबल बाय सोसाइटी, दैट्स कॉल्ड एज टैबू. ठीक है. सो इसमें ये बता रहे, स्टडी बाय ILO सेज दैट 50% ऑफ वर्किंग एज एडल्ट्स ग्लोबली लिव विद अ मेंटल डिसऑर्डर. यस, दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग. लगभग 15% लोग जो है वो वर्किंग एज एडल्ट्स जो है, यानी जो काम करने के लायक है ना, यंग पीपल ग्लोबली, वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से. वन हैंड डिसेंट वर्क इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ इन पॉजिटिव वे, व्हाइल ऑन द अदर इन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल. तो दूसरी चीज अनएम्प्लॉयमेंट है, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन है ना, पुअर एंड अनसेफ वर्किंग एनवायरमेंट है. दीज आर द रीजंस फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज. इंडिया में 90% लोग एक्चुअली, इंडियाज इनफॉर्मल वर्कफोर्स अकाउंट फॉर 90% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन.
वर्किंग पॉपुलेशन का 90% इन्फॉर्मेट वर्कफोर्स है। दीज वर्कर्स ऑफन ऑपरेट विदाउट रेगुलेटरी प्रोटेक्शन, उनके पास कोई प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या लॉन्ग वर्किंग आवर्स होता है, लिटिल और लेस सोशल और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन यानी पीएफ पेंशन ये सब का चीज नहीं होता है। सफर हाई अनसर्टेनिटी, डीप प्रिकैरिटी एंड ऑल, तो वही उन लोगों को बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होता है ना। सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट। जेंडर डिस्पैरिटी है बिटवीन मेल एंड वुमेन है, वी हैव सीन इट। अच्छा, कौन से आर्टिकल है, विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट जेंडर पैरिटी इन पेमेंट? इस तरह करके एक आर्टिकल है डीपीएसपी में, बताइए तो, कोई बता सकता है? एनीवन? According to UNDP, unemployment and poor quality employment have consistently been detrimental to health. एक बेरोजगारी और पुअर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर जॉब मिल भी रही है तो बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं, सैलरी बहुत कम है, पेमेंट वेजेस बहुत कम है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है एंड ऑल। सो दीज आर सम ऑफ द रीजन फॉर मेंटल हेल्थ। ठीक है, फिर और भी लोग सर्वे वगैरह बता रहे हैं कि दे हैव डन सम सर्वे एंड ऑल। ओके, द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी रिपोर्ट्स दे आर हाईलाइटिंग इट, शो दैट अ यंग वुमन हु शो एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 42%। तो वही सब, अब नंबर्स परसेंटेज याद नहीं रखना है कि इतना परसेंट है, दैट परसेंट है, बट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अच्छा, किसी ने अभी तक बताया नहीं है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 39। यस, गुड, यस नंदिता, नंदना, यस गौरी सेठी। आर्टिकल 39 टॉक्स अबाउट इट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। ठीक है, तो आर्टिकल 39 से डीपीएसपी एंड ऑल है ना। इंडिया आल्सो बिकम एन एजिंग सोसाइटी इन 20 years। हाँ, अब देखो क्या है कि अभी तो हम लोग बोलते हैं कि इंडिया इज हैविंग डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया के पास क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब since we have a huge amount of youth population, so we have a benefit of that। बहुत बड़ी youth population है, if we provide them a skill and education, then of course they will help us reach the high growth as far as GDP is concerned। लेकिन वही चीज 2050 में जाके जितनी भी अभी यंग पॉपुलेशन है 2050 में बूढ़ी हो जाएगी, मतलब एजेड हो जाएगी, है ना, आफ्टर 25 years। सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो मतलब 20-30 सालों में जाकर के वो एजेड हो जाएगी। अब उनको अगर सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, सो दैट विल बी अ सीरियस थिंग एंड ऑल, है ना। सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट। फिर वो मनरेगा की बात कर रहे हैं, मनरेगा फंड्स एंड ऑल, है ना। They are talking about it. NCRB reported that 26% of the people who died are actually daily wage earners। ठीक है, तो yes, तो डेली वेज अर्नर्स जो है, इनफैक्ट अपने फार्मर्स से भी रिलेटेड ये सब वर्ड सुना होगा कि फार्मर्स इज नॉट एबल टू पे द डेट एंड दे आर आल्सो बिकमिंग taking their own life and all। okay, so these are the things you should be knowing it। okay, तो इसी की बात किया, let's talk about this Asian Games। I hope you are aware Hangzhou is a place in China where Asian Games is happening। okay, so basically उसमें इंडिया ने टोटल कितना मेडल जीता है? 107, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज। चलो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले मैच कहाँ हुआ था? मतलब हांगझो में हुआ था। इसका आप मोटो बताइए क्या है? प्लीज टेल मी द मोटो ऑफ हांगझो एशियन गेम्स। आई हैव टॉट दिस अर्लियर, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है ना, इसमें बता रहे हैं कि देखो यहाँ देख लेते हैं, हाईएस्ट मेडल किसने जीता है? चाइना ने जीता है। 201 गोल्ड, 111 सिल्वर, 71 ब्रॉन्ज एंड 383 टोटल। ठीक है, इंडिया ने टोटल जीता है 107, जिसमें 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है, 41 ब्रॉन्ज है। ठीक है, ये वाला याद कर लीजिएगा, ये नहीं याद रहे तो भी चलेगा, बट ये याद कर लीजिएगा। बस ये याद कर लीजिएगा कि रैंक 1 इज चाइना, इंडिया इज रैंक 4th, और इंडिया के मेडल्स याद कर लीजिएगा, शायद ये पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, विच स्टेट, कौन से स्टेट को कौन सा मेडल मिला, ये वाला आर्टिकल थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, गो एंड रीड इट। इसमें एक और स्पोर्ट्स स्टार, ये दो ही ग्रुप वालों का होता है, ये वाली वेबसाइट है ना। एशियन गेम्स फुल लिस्ट ऑफ इंडियन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। तो गोल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स बता रहे हैं। यस, हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर इज द थीम, वेरी गुड मोटो। हाँ, अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल दीज आर द गोल्ड विनर्स, आर्चरी में, है ना, एथलेटिक्स में ये लोग हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताऊं, जैसे नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है। ठीक है, क्रिकेट में मेंस टीम और वुमेन्स टीम दोनों ने गोल्ड जीता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, है ना। फिर हॉकी में और कबड्डी में मेंस टीम ने जीता है गोल्ड। ठीक है, सो दीज आर द गोल्ड विनर्स। सारे का नाम याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट वन से मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो गोल्ड मेडल मैंने, गोल्ड विनर्स जो है ये मैंने लगा दिया यहाँ पर। अगर आपको बाकी सारा भी देखना तो ये वाली वेबसाइट जो है स्पोर्ट्स स्टार द हिंदू की है, उसमें पूरा डिटेल मिल जाएगा, है ना। फुल लिस्ट ऑफ इंडियन गोल्ड सिल्वर मेडलिस्ट, ये गूगल पे सर्च मारना, यू विल गेट इट। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट वन इज द एंड ऑफ द 2 स्टेट सोल्यूशन। एक्चुअली ये टर्म जो है ना, वही इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, 2 स्टेट सोल्यूशन। ठीक है,
Okay. Yes. Okay. So from the very beginning of the Jewish Arab country, the only viable long-term solution has been to divide the land between Jordan River and Mediterranean Sea by creating two countries for two people. देखो यही वो ज्योग्राफी बता रहे, मैंने आपको बताया था जॉर्डन रिवर पढ़ने के लिए. सो हेयर इज इंडिया, दिस इज इजराइल. ठीक है, आप देखो ये ना है ना, ये इजराइल है. तो यहाँ पे वेस्ट बैंक है एंड दिस इज गाजा. मैंने बताया था ये वाला नहीं, यहाँ पे जॉर्डन रिवर आपको मिलेगा. ठीक है, जॉर्डन रिवर, जॉर्डन कंट्री अभी है, और यहाँ मेडिटेरेनियन सी. ठीक है, ओके. सो दैट इज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट बोथ द अरब्स एंड, मतलब वो बता रहे कि दो स्टेट सॉल्यूशन मान लेना चाहिए, दोनों को अलग अलग स्टेट्स. दैट वुड हैव बीन कि इजराइल इज अ डिफरेंट स्टेट एंड पैलेस्टाइन इज अ डिफरेंट स्टेट, बोथ शुड रिकॉग्नाइज ईच अदर. दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग. Jewish accepted the inevitability of partition and all. तो ये अब इसमें पूरा हिस्ट्री है, डिटेल हिस्ट्री. At first glance there seems to be many stakeholders to this never ending conflict such as Palestinian people, the multiple Palestinian leaders of Hamas and all. ठीक है, तो ये these are the things. इसको हम लोग डिटेल में we'll discuss it in paid classes. ठीक है, टॉपर्स बैच में I will explain. उसमें खास की ज्योग्राफिकल टर्म्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, जो उसके आसपास में बहुत, एक्चुअली ये जो लोकेशन है यहाँ पे बहुत सारे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टर्म्स है. ये वाला वाटर बॉडी, जैसे मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप फाइंड आउट करना. ये वाला वाटर बॉडी, ये वाला वाटर बॉडी, ये वाला वाटर बॉडी, दिस वन. ओके, दीज आर द वाटर बॉडीज इन द न्यूज. फिर कुछ पोर्ट्स है यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर पोर्ट है, फिर यहाँ पर दो फेमस पोर्ट है. ओके, यहाँ पर एक डेजर्ट है. सो दीज आर वेरी फेमस की टर्म्स. हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी, इस पूरे रीजन का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है बहुत ज्यादा. ओके, सो गो एंड रीड इट. दिस थिंग्स है ना. Okay, let's move on. Hamas does not accept Israel's right to exist in any shape. Hamas believe that Israel does not exist, है ना, और Israel should not exist and all these other things. So ये actually ये वाला map काफी famous हो रहा था. So this was earlier the Palestine, mostly the Greenland. So over the time the Jewish settlement started expanding and all. And right now this is the present scenario now. Okay, so just have an idea about that. Okay. Yes, the central obstruction to a two-state solution has not been the Israel occupation of West Bank and Gaza and all. Okay, तो 1967 war है, 1967 war, 1973 war is there, है ना. ये दोनों पढ़िएगा, मैंने आपको बताया. इंतिफादा and all. Festive cheer, urban consumer confidence at 7-year peak. देखो एक्चुअली क्या है, अभी रिसेंटली a lot of e-commerce website are coming up with festive offers, है ना. अभी नेक्स्ट मंथ में, मतलब इस मंथ और नेक्स्ट मंथ में बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो उसके लिए फेस्टिव चीयर है. तो अब ये देखा जा रहा है कि अर्बन कंज्यूमर का जो पैटर्न है क्या बेटर हुआ है. सो पिछले 7 साल में पहली बार इंप्रूवमेंट दिखा गया. ओके, है ना, इन द लास्ट 7 years. हाँ, ओके, यस. तो देखो जैसे बता रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वर्सेंट, तो ये अब यहाँ नीचे गिरा है. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव, तो ये इंप्रूव हुआ है. ओके, सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. इसको जस्ट गो थ्रू इट, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाना. एक ये है द स्टेट ऑफ इंडिया शेड्यूल एरियाज. तो एक्चुअली दो शेड्यूल, एक होता है 5th शेड्यूल, एक होता है 6th शेड्यूल. दीज आर द 2 शेड्यूल. सो 6th शेड्यूल में आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. दीज 4 स्टेट्स में कुछ ऐसे एरियाज है जिसको 6th शेड्यूल एरियाज डिक्लेयर किया गया है. ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है ना, भी है ना, आप देखो यहाँ 6th शेड्यूल एरियाज लिखा है, और यही वाला नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के कुछ एरियाज. दैट्स 6th शेड्यूल एरियाज. 5th शेड्यूल एरियाज भी है, जैसे ये सब है 5th शेड्यूल एरियाज है. उसमें पेसा इंप्लीमेंट किया था, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996. दिस इज इंप्लीमेंटेड इन 5th शेड्यूल एरियाज. ठीक है, ये प्राइमरली शेड्यूल एरियाज होता है, ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए होता है. थोड़ा सा स्पेशल गवर्निंग राइट्स वगैरह दिया था इस सब रीजन में. मतलब थोड़ा आपको पता होगा, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे दे हैव गिवन सम सेपरेट पावर्स, है ना. द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज देयर, तो उन लोगों को कुछ स्पेशल पावर्स होता है. फिर ट्राइबल एरियाज में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे बाहर के लोग कई बार बहुत सारे एरियाज में नहीं जा सकते हैं. दे हैव देयर ओन वी कैन से द गवर्निंग राइट्स लोकल लेवल पर एंड ऑल, है ना. ओके, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट कास्ट शैडोज ऑन इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स. यस, अब ये इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स पर कास्ट शैडो, जैसे I2U2 और IMEC की बात हो रही है ना. जैसे बच्चा को पूछ भी रहा था ना, I2U2 एक है, और IMEC तभी मैंने बताया है, इंडिया म्यांमार, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर. तो इस पे भी इशू हो सकता है. I2U2 ये क्या था, देखो पहले इजराइल और UAE के बीच अब्राहम अकॉर्ड हुआ था. अब क्वेश्चन ये 2020 में. नाउ द क्वेश्चन इज वेदर दिस विल मूव फॉरवर्ड और नॉट. ओके, because actually the world has got split and all.
So अब देखना ये है कि Arab world will be perhaps supporting the Palestine and also whether UAE will continue with this or not. In fact, Saudi Arab maybe recently, I think Israel's minister, one of the minister visited Saudi Arab and all. So these things were there in the news. Yes, the future, you were asking this. दूसरी चीज, जब I2 U2 भी उसी का एक एक्सटेंशन माना जा रहा था कि UAE है, इसराइल है, सो I2 इंडिया, इसराइल, US, UAE. ओके, तो क्या ये I2 U2 अब सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? सो दैट इज ऑल्सो ए क्वेश्चन. तो अब उसको तो वेट करना होगा. अकॉर्ड का मतलब वही अग्रीमेंट को अकॉर्ड कहते हैं. ठीक है, अग्रीमेंट एंड अकॉर्ड मोर और लेस सेम थिंग. ठीक है. So now the question is whether I2 U2 IMEC these things will move or not. So we'll have to wait for it, है ना. तो make ask shadow लिखा है ना, official says, है ना. एक और आर्टिकल थी, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स ड्रॉप टू 6.6% इन Q1. अच्छा बताओ, तो अगर हम पूछें कि Q1 ऑफ FY24 तो कौन सा मंथ होगा? ये मैंने पढ़ाया है पेड क्लासेस में. प्लीज टेल मी इफ आई एम सेइंग Q1 ऑफ FY24, सो विच मंथ एंड विच ईयर? बताइए. I have taught this in economics part 1 in the paid classes. So urban employment rate थोड़ा सा कम हुआ है, 6.6% हुआ, ड्रॉप हुआ है. That is what they are saying. मंथ और ईयर दोनों बताना है. Q1 ऑफ FY24 कौन सा मंथ होगा, कौन सा ईयर होगा? यस, गौरी सेठी, वेरी गुड, सबसे परफेक्ट आंसर दिया. हाँ, मैंने आपको बताया था Q1 ऑफ FY24 और FY24 का मतलब होता है फिस्कल ईयर 23-24. ओके, और मैंने बताया था Q1 इज एक्चुअली अप्रैल, मई, जून. और मैंने ये भी बताया था कि फर्स्ट 3 क्वार्टर्स यू विल फाइंड इट हियर, Q1, Q2 एंड Q3, जबकि Q4 2024 में होगा. यस, सो ये बेसिकली द आंसर इज अप्रैल, मई, जून ऑफ 2023. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, और इसकी रिपोर्ट आ गई होगी, है ना, अप्रैल, मई, जून 2023 की रिपोर्ट आ गई होगी, बिकॉज राइट नाउ वी आर इन अक्टूबर, है ना. सो दैट इज व्हाट द रिपोर्ट हैज कम अप एंड दे आर सेइंग, वही Q1 की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो इस साल का, इस फिस्कल ईयर का, जिस फिस्कल ईयर में हम लोग हैं, उसका Q1 का रिपोर्ट है. ठीक है, यू गॉट इट. देखो यहाँ लिखा हुआ अभी, अप्रैल टू जून 2023, हियर इट इज रिटन. यस, so periodic labor force survey का ना डेटा आया है, carried out NSSO sample has reported unemployment rate in urban areas has shown a decreasing period of April to June. ठीक है, तो डिक्रीज किया. इसका रीजंस वगैरह पढ़ो ना जाके, go and read it in detail. ठीक है. हाँ, अब देखो एक और चीज, गाजा स्ट्राइक रेजेस वरी फॉर इन्फ्लेशन, फिस्कल, मैथ, रूपी एंड ऑल. यस, मैंने आपको बताया था जब 1973 वॉर हुआ था, उससे क्या हुआ था, ऑयल प्राइसेस हाइक हुआ था. ओके, और इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था. इनफैक्ट इंडिया आल्सो गॉट इंपैक्टेड. जब ऑफ कोर्स ऑयल प्राइस हाइक होगा, हर जगह इंपैक्ट होगा. तब ये देखना है कि क्या उससे वर्ल्ड लेवल पर ऑयल प्राइस हाइक होगा या नहीं होगा. सो लेट्स वेट फॉर दैट आल्सो. ठीक है. ठीक है, श्रीलंका टू टेक ओवर एज चेयर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, IORA. ओके, अब देखो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के मेंबर, तो ये इंडियन ओशन है, इसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज, जो डार्कलिंग कंट्रीज है ना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, है ना, देन श्रीलंका, फिर इज ईरान, यमन, ओमान, ये सब कंट्रीज. ठीक है, सो दीज आर IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन. रिम मतलब होता है बाउंड्रीज, है ना. सो इंडियन ओशन की जो बाउंड्रीज में जो कंट्रीज टच करती है. ओके, बट पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर, इवन म्यांमार इज ऑल्सो नॉट अ मेंबर. ठीक है, सो उसके जो चेयरमैन श्रीलंका बन गए दिस ईयर. सो गो एंड रीड समथिंग अबाउट IORA. ओके, थोड़ा सा पढ़िएगा, है ना. 23 स्टेट्स इसमें, go and find out these 23 states. Secretariat is in EB, मॉरिशस. मॉरिशस आपको यहाँ पड़ेगा, यहाँ पे कहीं पे मॉरिशस होगा, मॉरिशस आइलैंड, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, ये भी कहीं पे होगा. ठीक है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, है ना. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉलो अस इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एंड डाउनलोड द BYJU'S exam prep app. Thank you everyone, thanks for watching, have a nice day.